Please let me know if I am audible and visible to you so that we could proceed with the today's lecture. I want to see how many faces are there now. So please put it in comment section. I am waiting for 1 or 2 minutes to join all of you. Utkarsh, yes, good noon. Let's wait for all the students to join, then we will proceed with the lecture. We were discussing the provisions of arrest, chapter 5 yesterday. Today, as I promised you, that we will be discussing the amendments, judgments on arrest, important one, and the provisions which have been left due to paucity of time yesterday. Fine, तो वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं. Yes, Priya, welcome. Priya, interview date? First July, great, all the very best. It's quite near. You need to strive hard then. Few days are left. Anyhow, all the best. The kind of sincerity you have shown so far and the consistency, I don't find any reason that you will not be selected. But the only thing is that you are to remain confident. Fine, because the competition, I would say, definitely is there. Fine, but your preparation is good, so I think you will be through. Fine. चलिए मिलने आएंगे हिमाचल में आपसे. आपको हरियाणा का भी वीडियो कल जो बनाया था मिल गया होगा. टेंटेटिव डेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग जो हैं बिल्कुल ऑन टाइम तैयारी पे हैं. आपका सिलेबस भी रिवाइज होने वाला है और आई मीन फ्रेश आपने पढ़ा होगा तो यू आर गोइंग टू रिटेन इट. एंड इफ़ I mean the time and opportunity allows you, you can reapply all these things like in exam. So there are ample chances of make it through in the first go. तो अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहिए बहुत अच्छे से. Right. I will take a pause for a minute. I think this call is from. I need to take this call. Oh, so should we start? Yes, Rupakshi, how are you? Your video is mind-blowing. I've seen you. Your voice is quite, chirping one. It really excites and gives a lot of thrill. So, I mean, very nice. Priya, even the videos which you have recorded, I liked it very much. Fine, so keep the tempo and the rhythm maintained. Get yourself, always associated with the law, and that is the only way that you can really understand it fully, apply it fully, and create a name, fame, and everything for you, having been in this profession. Fine, being you can say the premier stakeholder of this field. Fine, so should we start it? I think we should start. Okay, so as we were discussing the provision with regard to the arrest, we have so far done section 41, which enumerates the circumstances wherein the police can arrest without warrant. फाइन, यहाँ पे ना एक पुलिस के लिए राइडर फिक्स हुआ. 2010 का अमेंडमेंट है जो हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल. देखो क्या है, पुलिस के लिए एक बहुत ही लुक्रेटिव मोड है जब किसी की अरेस्ट का क्वेश्चन आता है. इफ द पुलिस इज गोइंग टू curtail somebody's liberty and that person feels so much of pressure
and force, he is ready to part with anything like money, other consideration like he is ready to accede with it because he doesn't want to get in. तो जब ये देखा गया कि ये जो एट्रोसिटीज़ हैं और ये द प्रेशर टैक्टिक्स हैं पुलिस के द्वारा ये बढ़ रहे हैं, उन केसेस में भी जहाँ पे जो अरेस्ट है दैट इज़ अनवारंटेड, फाइन. तो उसको चेक एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए कि अनड्यू प्रेशर एंड हरासमेंट कॉज ना की जाए पुलिस के द्वारा, तो कुछ एक राइडर्स जो हैं इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ DK बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल, जिसमें पुलिस को गाइडलाइन दी वाइल अरेस्टिंग द अक्यूज्ड क्या किया जाना है, कीपिंग इन व्यू द जजमेंट ऑफ जोगिंदर सिंह वर्सेस UP, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे. तो उसमें क्या था कि जब ये इंस्टांसेस रिपोर्ट हो रहे थे, बढ़ रहे थे, कस्टोडियल टॉर्चर, वायलेंस, ब्रूटैलिटी, देन राइडर फिक्स करना पड़ा कि ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 7 years, देयर वुड बी अ डिस्कशन विद द पुलिस ऑफिसर एंड ही इज रिक्वायर्ड टू सर्व द नोटिस टू द person concerned who is to be arrested, fine, who is to be arraigned as an accused and who is to be arrested. So 41A to 41D, B, C and D, these provisions were inserted and 41 का जो section 1 का clause A और B है, अगर उसमें अरेस्ट किया जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रोवाइजो ऐड किया गया. तो प्रोवाइजो आपको मैं बता देता हूँ. Clause A and B of subsection 1 has been amended to provide that power of arrest conferred upon the police officer must be exercised after reasonable care and satisfaction. तो पहला राइडर तो ये था कि this power of arrest is not an unfettered power. It is not to be exercised with the mala fide intention. Rather, it has to be exercised with the reasonable care and satisfaction. So you can write down before your verdict against section 41 that the police has to exercise this power with reasonable care and satisfaction. And if this arrest is necessary, so warranted under law, then it should be made. Fine. तो ये भी आप लिख लीजिए. अगर ये अरेस्ट रिक्वायर्ड है, वारंटेड है, necessary है at most, then only it could be made and there has to be a reasonable care and satisfaction with the police. Fine. So meaning thereby that it should not be, even though police is empowered to arrest without warrant, but such exercise should not be carried out with the mala fide reasons or under the garb of the extraneous consideration, ठीक है, just to settle your rivalry against somebody and somebody has bribed you or influenced you and only under his pressure you are going to arrest somebody. So because see, this is a very sacrosanct liberties which have been enshrined under Article 21, life and liberty. So it should not be taken away by somebody, fine, without any just reason. So this was the rationale behind incorporation or insertion of these provisions. ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि पावर है पुलिस के पास में विदाउट वारंट, बट प्रोवाइजो इज देयर कि विद द सेटिस्फेक्शन एंड रीजनेबली दिस हैज टू बी एक्सरसाइज, नॉट विद द mala fide एंड अंडर द garb of the extraneous consideration to be exercised. So specifically I am talking about clause A and B of subsection 1. ठीक है, तो ये आप एक ध्यान में रखिएगा. नाउ आई स्ट्रेट वे कम टू द 41A, 41B, C एंड D. ठीक है, ये आपका अमेंडमेंट 2008 और 2010 का है. ठीक है, अब 41A में ये बोला गया द नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर, मतलब नोटिस ऑफ अपीयरेंस आप लिख लीजिए 41A के आगे. अगेंस्ट अ पर्सन, जैसे मैंने 3 चीज़ें कल आपको अंडरलाइन करवाई थी कि जिसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट है, रीजनेबल कंप्लेंट है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको पुलिस ऑफिसर को एक नोटिस सर्व करना है. ठीक है, एंड द पर्सन टू whomsoever दिस नोटिस हैज बीन सर्व्ड ही हैज टू कंप्लाइड विद द नोटिस. ठीक है, मीन्स ही हैज टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, मीट द कंसर्न फेलो एंड पुट फोर्थ हिज वर्शन देयर. But if he has been going and meeting, then in that time that he will not be arrested. Okay, it is not that he has committed an offence and he has gone in compliance of the notice and he would be arrested then and there. It will not happen. In case it happens, occurs, then it would amount to a serious flout, serious violation of this provision, and the concerned police officer can be booked for the case. Or if a person to whom this notice has been served, he fails to comply with the terms of the notice, then police officer may arrest him. तो फिर वो उसको अरेस्ट जो है वो किया जा सकता है.
ये आपका सब सेक्शन 4 है जिसमें ये बात कही गई है कि अगर वो कंप्लाई नहीं करता है, फेल्स टू कंप्लाई द टर्म्स ऑफ द नोटिस, देन ही कुड बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, तो ये 2010 का अमेंडमेंट है आपका। ठीक है, देन आई कम टू द 41B। इसके आगे आप लिखिएगा प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट। नाउ सबसे पहले तो देखो जो DK बसु वेस्ट बंगाल की जजमेंट थी उसमें ये बात कही गई थी गाइडलाइंस में कि द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक अरेस्ट ही इज सपोज टू reveal his identity. He has to carry out a badge with his name and the designation written on it. ठीक है, सो दैट उसको पता लगे कि जो बंदा मुझे अरेस्ट करने आया है ये वाकई एक ऑथराइज पर्सन है और एम्पावर्ड बाय लॉ है, इसका ये नेम और डेजिग्नेशन है। राइट, तो सबसे पहले इसमें यह बोला गया कि जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन है वो कैरी करेगा। ठीक है, एंड वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो है वो बनाएगा, एंड जो at least one witness who is a family member of a person or a respectable member of the locality, he will sign it. Fine, and even it would be signed, countersigned by the arrestee also. ठीक है, तो एक तो अपनी आइडेंटिटी उसके लिए वो बैज दैट इज मस्ट। टू अरेस्ट मेमो ही विल बी प्रिपेयरिंग, इंडिपेंडेंट विटनेस का सिग्नेचर होगा, प्रेफरेबली फैमिली मेंबर और एनीबडी फ्रॉम दी एनी रिस्पेक्टेबल फ्रॉम दी लोकेलिटी, एंड इट वुड बी काउंटरसाइंड बाय दी अरेस्टी एज वेल। And the relative or the friend, family members, relative or the friend would be informed about the arrest. ये है 41B का। क्यों? देखो पुलिस आती है, आपको अरेस्ट करके ले जाती है, आपके वेयर अबाउट किसी को पता नहीं होते कि आपको कहाँ रखा गया है, आप इन ह्यूमन कंडीशन में हो, ह्यूमन कंडीशंस में हो, आपके पास में जो बेसिक एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ आपको सस्टेन करने के लिए चाहिए, क्या आपको वो प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे। तो कीपिंग इन व्यू दिस प्रोविजन वाज इंटरेस्टेड दैट द पुलिस ऑफिशियल whosoever is making an arrest would inform to the family member, at least one who will remain aware about the whereabouts of the arrestee. Fine, तो ये आपका आर्टिकल 22 यहाँ पे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ते हैं, उसके साथ भी आप इसको रीड आउट कर सकते हो। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोविज़न हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इसके साथ आप रीड करोगे। येस्टरडे रश्मि आई थिंक शी वाज क्वाइट वरीड कि सर आपने जो है वो कोरिलेशन तो बताया लेकिन रेस्ट ऑफ द प्रोविजन वेदर यू विल डिस्कस इट और नॉट। सो आई जस्ट वांट टू मेक यू assure and reassure that the best from our end would be provided to you. I am not going to leave any provision which is so important from the examination point of view and which is required to be told to you to make you fully aware and confident for the exam. ठीक है, तो रश्मि ईच एंड एवरी प्रोविजन वी विल डू। वो तो जब देखो हम कॉमन पार्लेंस में डिस्कस कर रहे थे अरेस्ट का कॉन्सेप्ट, तो जहाँ जहाँ भी मुझे लगा, जैसे हमने विद वारंट डिस्कस किया, विदाउट वारंट डिस्कस किया, उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है उसके साथ जो कंसोनेंस बनती थी उसकी, तो वो मैंने हाईलाइट किया आपको कि जब आपको एग्ज़ाम अपीयर करना है और जब आपको अदरवाइज कोई पूछ लेता है लाइक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो होलिस्टिक अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड। इट इज़ नॉट कि आपको आइसोलेशन में एक सेक्शन पढ़ना है, तो जहाँ जहाँ भी उसका कोरिलेशन आपको नजर आता है दैट इज़ व्हाट यू हैव टू पॉइंट आउट, यू हैव टू मार्क एंड यू हैव टू रिमेंबर इट आल्सो, एंड दैट इज़ द अप्रोच टू रीड द लॉ। ठीक है, तो वही एक अप्रोच है जो एक मतलब आप बोल सकते हो कि बेस्ट सूटेबल रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट अप्रोच है टू रीड द प्रोविजंस। 41C में आप याद रखेंगे, C से कंट्रोल रूम। ठीक है, द गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड अ स्टेट लेवल। अब क्यों? द मोमेंट एनी अरेस्ट इज मेड द कंट्रोल रूम इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द एड्रेस। ठीक है, and person who has arrested would share his name and designation as well. ठीक है, and स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल रूम बनाने के लिए इसमें बोला गया है, सो दैट कि एक डाटाबेस उनके पास में मेंटेन हो और डेटेन्यू के बारे में, अरेस्टी के बारे में, अक्यूज़ के बारे में और द पर्सन हु हैज़ बीन मेकिंग द अरेस्ट उसके बारे में। देखो बहुत सारे केसेस हुए जब लोगों को उठा के लेके जाया करता था, ड्यूरिंग द टेररिज्म पीरियड, अगर मैं 84 की बात करूं तो, लेकिन उनके वेयर अबाउट पता नहीं होते थे कि किसने अरेस्ट किया, कब अरेस्ट किया, कहाँ उसको रखा गया, और उसके बाद में पता चलता था वन फाइन डे कि ही इज़ इलॉप्ड, ही इज़ नो मोर देयर लाइक तो अब इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी द सेफ गार्ड मैयर तो this has been
carved out as a mandatory provision. Fine. 41C, the control room concerned of the state and the central would be informed about the whereabouts of the person and the person who has effected the arrest also. ठीक है, उसका name and designation, so that a check could be put and such kind of manipulation etc. I mean could not happen. Fine. 41D, right of arrested person to meet an advocate of his choice. So D से आप advocate याद रखिए, devil's advocate, you know. So even during the investigation जो access है lawyer की consultation की, that would be provided to the accused. ठीक है, तो the word shall, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation. ठीक है, though not throughout interrogation. ठीक है, बट ये है कि उसको एक्सेस मिलेगा लेकिन थ्रू आउट इंटरोगेशन पे वो वहाँ बैठा रहे, इट इज़ नॉट आई मीन प्रैक्टिकली पॉसिबल. ठीक है, बिकॉज सर्टन थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सपेक्टेड like the modus operandi of the crime and other things like you know by the police which should not be in the knowledge of the lawyer, but he will be giving I mean access to have a consultation even during the investigation time. ठीक है, तो वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा 41D. सो 41A to 41D, these are the provisions incorporated by way of amendment of year 2008 and 2010. these were very important. और एक जो हमने पहले राइडर किया क्लॉज A और B का, वो जो राइडर है ये आप याद रखेंगे. 42 हमने पढ़ लिया था ऑन अकाउंट ऑफ गिविंग आई मीन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस. 43 बाय अ प्राइवेट पर्सन वी हैव डिस्कस यस्टरडे. अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट 44 हमने पढ़ लिया था. आर्म्ड फोर्सेस की जो इम्यूनिटी है 45 फ्रॉम द अरेस्ट, वो भी हमने डिस्कस कर लिया. अरेस्ट हाउ मेड, ये भी हमने 46 में कल पढ़ लिया था. नाउ विल बी डिस्कसिंग समथिंग फ्रॉम सेक्शन 47 ऑनवर्ड. ठीक है, तो पावर टू सर्च अ प्लेस 47. अब इसमें तीन चीज़ें हैं, सब सेक्शन 1, 2 एंड 3. आप उसके आगे मार्क कर लीजिए. देखो, पुलिस इज टू बी अफोर्डेड a reasonable access to the house wherein the accused is hiding himself. So it becomes the legal obligation of the occupier to provide that access to the police. ठीक है, तो if the police want to search the house or the place for the purpose of making an arrest, that access would be afforded. 47(1) ये बोलता है आपका. और if such an ingress cannot be obtained, ठीक है, by the police can break open any door or window of such house or place. subsection 2 आपका ये बोलता है. Fine. Or if it is an arrest pertaining to the if the actual occupant of the place is a पर्दा नशीन लेडी, आई मीन जो ट्रेडिशनली और कस्टम के अकॉर्डिंग जो पब्लिकली ओपनली लेडी नहीं आ सकती है, तो अगर वो ऐसा सिनेरियो है वहाँ, देन पुलिस बिफोर एंटरिंग द अपार्टमेंट गिव नोटिस टू द लेडी. ठीक है, एंड टेल हर टू विड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम इट, एंड देन आफ्टर दैट then the break open the apartment and enter into it. ठीक है, and police officer shall have power to use force for the purpose of liberating himself in case he is detained in the house or place. तो जो reasonable power है, force है, that could also be used. तो 47(3) जो ये बोलता है, तो it simply means that if a person is to be arrested and he has been hiding himself in a place or a house, that place, the ingress is to be provided by the occupier. If it is not provided, then the window and door could be broken and a reasonable force could be used to liberate the person who has detained himself in that house. तो ये है क्रक्स 47 का. ठीक है, 48 ये बोलता है पावर टू परस्यू ऑफेंडर इनटू अदर जुरिसडिक्शन. तो अगर वो मान लिए क्राइम हुआ पंजाब में और वो भाग गया यूपी में, तो अब ये है कि पर्सन हु हैज टू इफेक्ट द अरेस्ट विदाउट वारंट, फाइन, सो ही कैन परस्यू दैट पर्सन इन दैट टेरिटरी आल्सो. ठीक है, ही इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट इनटू एनी प्लेस इन इंडिया. ठीक है, तो ये सेक्शन 48 है आपका. इंटरस्टेट अरेस्ट के ऊपर में बहुत अच्छी जजमेंट आई है दिल्ली हाई कोर्ट का, वो आपको आई नेम इट टुडे. ठीक है, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट जजमेंट आल्सो, हाउ द अरेस्ट फ्रॉम इंटरस्टेट इज टू बी अफेक्टेड. ठीक है, then comes the section
हम लोग इसको now you come straightway to section 55, power to require subordinate officer to arrest. If an officer in charge is delegating his duty to the subordinate one to execute the arrest, then that subordinate officer is to notify the substance to the person who is going to be arrested. इसका सिर्फ इतना मतलब है, ठीक है. तो the same power he would be exercising on the directions and instructions of his superior, and the moment he has to execute it, he will disclose the he will notify the substance of the arrest to the offender or the arrestee. ये है 59, ठीक है. और पावर टू री अरेस्ट एस्केप्स, अगर मान लीजिए एक बार पकड़ा गया अक्यूजर बाद में उसी कस्टडी से भाग गया, तो वो उसको परस्यू करने के लिए इन इंडिया एनीवेयर, फाइन. सो दी पर्सन जिसकी कस्टडी से वो रिलीज हुआ है या भागा है, ही इज एम्पावर्ड, ठीक है. तो सेक्शन 60 का मायने यही है. तो ये हमने पढ़ा है अभी तक. इसके साथ में आप पढ़ सकते हैं एक 46(3) में हमने कल पढ़ा था कि रीजनेबल फोर्स इज टू बी यूज्ड एंड डेथ इज नॉट टू बी कॉज्ड. इट कुड बी कॉज्ड ओनली इन द केसेस वेयर इन द ऑफेंडर हैज कमिटेड एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल टू डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है. ये 46(3) का हमने राइटर पढ़ा था. 49 जो है वो लेस डाउन करता है प्रोविजन कि हाउ मच रिस्ट्रेन इज टू बी एक्सरसाइज्ड टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ एन अक्यूज्ड. हाउ मच रिस्ट्रेन इज टू बी एक्सरसाइज्ड. इसमें हैंडकफिंग एंड फेटर ओनली विद द प्रोविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट. रीजनेबल फोर्स टू एग्जीक्यूट द अरेस्ट और द वारंट ऑफ अरेस्ट कुड बी एक्सरसाइज, ठीक है. तो ये 49 है. सो 46 इज टू बी रेड विथ सेक्शन 49 एज वेल. तो हाउ द अरेस्ट इज टू बी इफेक्टेड, आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू 46 to 49. सेक्शन 55 and 60 we have covered. Fine. Now I come to the after arrest procedure. ठीक है. जब आपका अरेस्ट हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस को क्या करना है. सेक्शन 50 हमने कल पढ़ लिया था कि यू हैव अ राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड द ऑफेंस फॉर विच यू आर बीइंग अरेस्टेड, एंड देन योर रिलेटिव एंड द फ्रेंड्स हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड. ये हमने कल 50 सेक्शन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 पढ़ लिया था, ठीक है. तो अब मैं स्ट्रेट वे आता हूँ. आफ्टर अरेस्ट का जो प्रोसीजर है, पहला है 51 का, दिट डील्स विद द पर्सनल सर्च ऑफ एन अरेस्टी. पर्सनल सर्च, इसके आप लिख लीजिए पर्सनल सर्च. सर्च मेमो इज टू बी प्रिपेयर्ड. All the articles, belongings, whatever have been found, except the wearing apparels, are to be kept in a safe custody. देखो ये जो प्रोविजन है इसके साथ में आप एक वर्ड लिख लीजिए. Now to avoid the possibility of implanting an object to be shown in the search. It is very, you can say typical exercise which should be performed very fairly. मान लीजिए आपके पर्सनल सर्च चल रही है, आपसे वेपन दिखा दिया, आपसे ड्रग्स दिखा दिया, तो that would amount to planting of the substance, and ultimately it would be very difficult to prove in a court of law if the search memo is prepared so, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे जो कॉशंस लेने हैं while preparing the search memo, ठीक है. जब हमने 100 का सर्च पढ़ा था तो उसमें था कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस टू बी ज्वाइंड. अब ये है आफ्टर आपके अरेस्ट के बाद का जो सर्च का ऑपरेशन है, सेक्शन 51 उससे डील करता है, एंड डील्स विद द पर्सनल सर्च ओनली.
So preferably it should be made in presence of the independent and the respectable witness, so that the possibility of implanting any object could be avoided. तो 51 में आप लिख लीजिए, the possibility of implanting any object could be avoided, therefore preferably it should be before the independent witness, and such memo is to be prepared as per law. All the belongings except the wearing apparels are to be kept safe. ये 51 है आपका. 52 deals with the seizure of the offensive weapon. If any weapon of offense has been found, the same would be seized and ultimately taken to the court for the inspection. 52, seizure of offensive weapon. 53 is very important, that deals with the medical examination of the accused. देखो, why do we require the medical examination of the accused at an earlier possible opportunity? Sometime if such an examination could afford our defense to the accused for that purpose, and sometime when it could establish its guilt. ठीक है, तो दोनों ही परिस्थितियों में मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो बेहद ज़रूरी बन जाता है. मान लीजिए फिजिकल वायलेंस का केस है और मैं ये डिफेंस लेने वाला हूँ कि मतलब अटैक मेरे पे हुआ था, इवन आई सस्टेन्ड इंजरीज. ठीक है, नाउ आई वांट दैट माय इंजरी शुड बी एग्जामिन्ड सो दैट आई कुड प्रूव दैट I mean it is me who is a sufferer or a victim, rather I was attacked, and in my right to while exercising my right to private defense I had to attack upon them also. ठीक है, in that case that would carry as a defense to me. But अगर कुछ ऐसा केस है जिससे मतलब कि प्रोसिक्यूशन को हेल्प मिलने वाला है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद में कि आप ने ही वो क्राइम किया है, टू एस्टैब्लिश दैट, देन इट्स आल्सो परमिसिबल. ठीक है, तो ये दोनों परिस्थितियों में जो है वो इम्पॉर्टेंट है. तो एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन, सीमन स्वैब इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्पेक्ट्रम एंड स्वेट, हेयर सैंपल एंड फिंगर नेल्स. ठीक है, etc. Even the DNA profiling such as, well, this would include in the medical examination. This was amended 53A and 54. This was amended by way of amendment of 2005. Then the medical practitioner has been defined, registered medical practitioner who possesses any medical qualification as defined in clause H of section 2 of the Indian Medical Council Act of 1956. ठीक है, तो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो 1956 का है उसका सेक्शन 2H डिफाइन करता है कि who would be the registered medical practitioner, because the word used in this section 53 is that examination is to be conducted by the registered medical practitioner only. He has to act in good faith and again the reasonable force by even the medical expert could be exercised for conducting this examination also. And if the medical examination of a woman is to be conducted, then it shall be under the supervision of a registered lady medical practitioner only. ठीक है, to and keeping in view the dignity and honor of the lady, so this has been made mandatory under section 53 subsection 2. Fine. So such the examination, medical examination will not be violative of article 23 as well. तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों. ठीक है, 53A जो है वो इंसर्ट किया गया है 2005 की अमेंडमेंट से. दिस इज़ विद रिगार्ड टू दी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप. फाइन, ये स्पेशल प्रोविज़न है 53A 2005 अमेंडमेंट से. इसमें द पर्सन हु हैज़ बिन फाउंड टू बी accused of committing an offense of rape, तो उसमें ये क्राइटेरिया मेंशन है कि उसका नेम, एड्रेस, उसका एज, मार्क्स ऑफ इंजरी, डिस्क्रिप्शन ना, DNA profiling, other medical particular
and this report shall precisely state the reason for such conclusion arrived at, opinion क्या form हुआ उसमें, fine. तो ये सब जो है 53A में है. तो 53A में for pre point of view आप इतना याद रखिएगा, special provision inserted in 2005, and this is with regard to the examination of the person accused of rape. Okay. Section 54 gives the arrestee the right to have himself medically examined. If accused wants that he wants to be, examine himself medically, then he could. Fine. So 53 is on the asking of the police, and 54 is on the asking of the arrestee. Arrested person has a right to have his body examined by a registered medical practitioner. ये उसको इनेबल करने के लिए कि इन केस कल को वो चार्ज से फ्री हो सकता है, डिफेंस प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी कोई कमिट हुआ है, ठीक है. तो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, नाउ इन व्यू ऑफ दैट ओनली दिस प्रोविजन हैज़ बीन इनेक्टेड. इसमें एक अमेंडमेंट है सेक्शन 2005 में, सेक्शन 54 का. ये आप ध्यान में रखिएगा कि the copy of the report, if an arrestee wants from the medical practitioner, he will have a right to obtain such copy. A copy of the report of such examination shall be furnished by the registered medical practitioner to the arrested person or the person nominated by such arrested one. ठीक है. तो उसने अगर किसी को नॉमिनेट किया या खुद वो कॉपी चाहता है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर विल हैव टू गिव द कॉपी टू दी ठीक है. So 53, 53A and 54 deals with the medical examination of the arrestee. Okay. $55 हमने पढ़ लिया. 56 और 57 जो है, 56 में तो कहता है विदाउट एनी अनरीजनेबल डिले ही इज़ टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट. 57 में बोलता है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 24 आवर, विद इन 24 आवर ही इज़ टू बी प्रोड्यूस, एंड दिस अगेन इज़ टू बी रेड विद सेक्शन 167 जो रिमांड की प्रोविजन है, वहाँ भी हम इसको एक बार ही डिस्कस करेंगे. ठीक है. 58 में द पुलिस ऑफिसर इज़ टू रिपोर्ट टू द एप्रीहेंशन टू द मजिस्ट्रेट. सी DM इज़ द एग्जेक्टिव head, like who is duty bound to maintain the law and order and to keep the peace and harmony in the society, so he should be informed about each and every activities. ठीक है. तो ये उसी का मतलब in pursuance to that only the police officer is to inform to the DM about the arrestee. ठीक है, कि that the crime was committed and we have arrested such and such fellow. The charge of person apprehended for 59. अगर कोई पर्सन को अरेस्ट किया है, उसको डिस्चार्ज करना है, तो या तो वो अपने बॉन्ड फर्निश करेगा, ठीक है, या फिर स्पेशल ऑर्डर अप्लेन करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से उसके लिए. ठीक है. तो ये 59 बोलता है इन केस इज टू बी डिस्चार्ज ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द बेल बॉन्ड. 60 ये बोलता है कि द अरेस्ट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद ऑल दीज प्रोविजंस विच वी हैव डिस्कस सो फार. ठीक है. 60A जो है that was inserted in 2008 which says no arrest shall be made except in accordance with the provision of this code or any other law for the time being in force providing for the arrest. So it has to be in conformity with the provisions what we have discussed so far. Fine. So this is all about arrest my dear friends. तो इसमें जो है अक्यूज के और अरेस्टी के हमने राइट पढ़े हैं कि उसको राइट है जानने का कि कौन से केस के लिए वो रजिस्टर्ड किया जा रहा है, बेल का राइट है, कंसल्टेशन विद द लॉयर का राइट है,
देन उसको राइट है कि अपने आप को वो मेडिकल एग्जामिन करवा सकता है, ठीक है। देन हमने पढ़ा था कि उसको अपने आप को डिफेंड करने का राइट है 303 में, ठीक है। और 304 में हमने पढ़ा था कि राइट टू हैव अ लीगल एड, फ्री लीगल एड, अगर वो खुद कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली तो ही कैन हैव, स्टेट वुड प्रोवाइड हिम द एड, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू राइट्स विच आर अवेलेबल टू हिम। इसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू हैव नोट टू लीव दैट इज 41, 46, 53, 54 and 50 subsection 1 and 2, fine, and then 56 and 57, ठीक है। this is what you have to remember for the examination point of view. क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर, एक वुमेन को अरेस्ट को लेके राइट है, जिसमें ये बोला गया था कि बिफोर सनसेट एंड बिफोर सनराइज शी कुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो उसका एक जो अमेंडमेंट है वो हम अभी कर लेते हैं। अब अमेंडमेंट सभी करते हैं वन बाय वन, यू नो, वी जस्ट सी वंस अगेन एंड द केस लॉज एज वेल। तो पहला केस लॉज आप लिख सकते हैं अपने पास, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू कंसल्ट प्राइवेटली विद द लॉयर, ठीक है। इसमें आर्टिकल 21 एंड 22 को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि दीज टू राइट्स आर शुड बी विद द अक्यूज और अरेस्टी, ठीक है। तो पहला तो ये जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सेकेंड जो लैंडमार्क जजमेंट है दैट इज़ आई मीन DK बसु एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें अरेस्ट को के लिए गाइडलाइंस भी दिया गया था एंड इन व्यू ऑफ दोज गाइडलाइंस ओनली दीज प्रोविजंस वर अमेंडेड इन द ईयर 2008 एंड 2010 वेयर इन 41A to 41D वर इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो उसमें यही था कि वो टैग कैरी करेगा, अरेस्ट मेमो बनाएगा, ना पर्सन कंसर्न को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। और अनड्यू जो हरासमेंट एंड फोर्स एंड थ्रेट है दैट विल नॉट बी कॉज्ड अपॉन हिम, फाइन्स उसके वेयर अबाउट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें प्रोविज़न है रिगार्डिंग दी हेल्थ एंड सेफ्टी, वो है आपका आई थिंक दैट इज अमेंडमेंट बिकॉज द पर्सन कंसर्न्ड हु हैज़ पुट हिम इन अंडर डिटेंशन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। आई जस्ट टेल यू दैट इज़ एन अमेंडमेंट आल्सो, ठीक है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है लेटेस्ट वन दैट इज अनिश कुमार स्टेट ऑफ बिहार। देखो 498A का मेनेस बहुत बढ़ गया था बिकॉज फॉल्स केसेस वर बीइंग प्लांटेड अगेंस्ट दी इन लॉज फैमिली, ऑल द फैमिली मेंबर अपार्ट फ्रॉम द हस्बैंड वर बीइंग सब्जेक्टेड टू अनड्यू हरासमेंट एंड ह्यूमिलिएशन। तो अब उसको कर्ब करने के लिए ये एक समय की डिमांड थी कि जो अरेस्ट की मतलब प्रोविजंस हैं उनको थोड़ा लिबरली कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाए सो दैट कि एक्सेसिव जो प्रेशर है वो ना हो और मिसयूज़ ऑफ पावर्स ना हो पुलिस के द्वारा, और अंडर द गार्ब ऑफ दिस पावर जो है मतलब लोग जो है विक्टिमाइज ना हों, ठीक है। तो अनिश कुमार स्टेट ऑफ बिहार में ये बोला गया था कि जो ऑफेंस पनिशेबल हैं टू दी extent of 7 years therein the notice is required to be served automatically and straightway arrest उसमें नहीं किया जाना चाहिए। तो जो इन-लॉज फैमिलीज हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला था इस जजमेंट के बाद में, क्योंकि उनको एकदम से अरेस्ट नहीं किया जाता था और उसके बाद में वो अपना रिकोर्स जो है वो अवेल कर सकते थे कोर्ट ऑफ लॉ से, ठीक है। उनके पास इतना टाइम दिया जाता था। तो अनिश कुमार में बहुत सारी गाइडलाइंस हैं स्पेशली परटेनिंग टू द ऑफेंसेस ऑफ सेक्शन 498A विच यू हैव टू रेड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मैं जनरली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑलमोस्ट जो हमने अरेस्ट के बारे में अभी तक डिस्कस किया है वही है। कैजुअली और मैकेनिकली आप अरेस्ट नहीं करेंगे, नोटिस सर्व करेंगे, और सेक्शन 41A की जो है वो कंप्लायंस ज़रूरी है। 41 क्लॉज A एंड B, ठीक है, उसका जो राइडर है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और मतलब नोटिस ऑफ पेरेंट्स देंगे, दिस ऑल दिस थिंग्स लाइक यू नो। तो इस जजमेंट में ये बोला गया था। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं, जोगिंदर, DK बसु एंड द अनिश कुमार। 55A was the provision which I was saying, health and safety of arrested person. So this was incorporated. It shall be duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused. ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलता था कि अगर उसका कस्टोडियल डेथ हुआ है तो वो किस तरह से हुआ है, कौन लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं। तो नाउ दिस हैज़ बिन कार्व्ड आउट 55A फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो 55A 60A तो जो AA वाली है ना वो सब आपने करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है एक जनरल
सी जो मतलब इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो आप लिख लीजिए क्विकली। एक तो आप लिखिए प्रिजनर्स के राइट के लिए सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। राइट टू लीगल एड में आप लिखिए हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एंड इवन खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बोला गया था कि जो अंडर ट्रायल भी है, ठीक है, तो उसका भी ये राइट है टू हैव अ फ्री लीगल एड, सो ही शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस राइट आल्सो। तो दोनों जजमेंट आप राइट टू लीगल एड पे लिख लीजिए, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड देन खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। स्पीडी ट्रायल पे भी आप लिख सकते हैं हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें ये बोला गया था राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है दैट इज एन इनएलिनेबल राइट अंडर आर्टिकल 21। राइट टू कंपनसेशन 357(3) दैट हैज़ बीन कार्व्ड आउट ए स्पेशल प्रोविजन फॉर इट, बट ये जो डिसाइड हुआ था आपका रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। अगर तो आपको ये पूछा जाता है वन लाइन आंसर, राइट टू कंपनसेशन for the victim, because in this case he was in this case he was kept in jail है ना for about 14 years, अब even after his acquittal उसको रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल हुआ था, तो आर्टिकल 21 में जो है वो उसको कॉम्पनसेशन दिया गया था इस केस में। रुदल शाह इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। हाँ, एक हमने ना, चलो उसको मैं लास्ट में लेता हूँ, एक दो जजमेंट अपन और करते हैं इसमें। राइट टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले 56 और 57 के ऊपर में आप जजमेंट लिखिए, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह। और आई विल डू वन थिंग, लाइक यू नो, इफ यू कैन ड्रॉप योर ईमेल विद मीनाक्षी, आई विल create one particular presentation of the PDF file and share it with you so that you can go through all these judgments in one go, ठीक है। फिर भी आप अभी ईज के लिए लिख लीजिए, ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह, दिस इज राइट टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। राइट टू कंसल्ट द लीगल प्रैक्टिशनर्स पे आप लिखिए जनार्दन रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। Janardhan Reddy versus State of Hyderabad, right to consult a legal practitioner. Free legal aid पे you can write Hussain Ara Khatun versus Bihar. This is the Hussain Ara Khatun could be used at 3-4 places, like you know, so different the issues and concerns were observed and then discussed, and you know the reasoning were drawn by the Honorable Supreme Court. So this is very important judgment, तो आपको उसको thoroughly go through करना, ठीक है। खत्री, हुसैन आरा खातून, सुनील बत्रा, these are few landmark judgments in constitution and as far as in CRPC, which you have to go through. MH Haskote versus State of Maharashtra, this you can write, right to free legal aid. MH Haskote versus State of Maharashtra. अब फ्री लीगल एड पे आप 3 सेक्शन लिखेंगे, 304 जो मैंने बार बार डिस्कस किया है, आर्टिकल 21 एंड देन आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये फ्री लीगल एड के बारे में। राइट टू बी एग्जामिन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसा हमने अभी डिस्कस किया,
ठीक है, वो है आपका अनिल लोहांदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लिख लीजिए आप, अनिल लोहांदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और राइट टू फेयर ट्रायल पे देयर आर सो मेनी जजमेंट्स, बट आप जो लैंडमार्क इसमें जोगेंद्र कुमार शेड ऑफ यूपी, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। एक जजमेंट जो दिल्ली की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली हाई कोर्ट का, जो इंटरस्टेट अरेस्ट के ऊपर में है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई थिंक इट इज संदीप कुमार और समथिंग लाइक। इफ एनीबडी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द जजमेंट कैन लीव द नेम हियर, आई विल गिव यू द नेम टुमारो of that judgment. This is very landmark judgment, clear cut guidelines, everything, you know, framework, how the arrest is to be executed in other state, वो सब उसमें मेंशन किया गया है जजमेंट में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। और अब जो हमारा कॉन्सेप्ट एक था पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेके, जिसमें मैंने बोला था 25A जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है, दैट व्हाट इज़ दैट सेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एक डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्म किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट। नाउ दिस वुड गवर्न दी कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। तो यही उनको कमांड करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, सुपरवाइज करेगा, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस बनाएगा। तो ये आप जो है इसमें इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा नहीं है 25A में। द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन शैल बी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 10 साल का उसका प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु विल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट वुड बी अलाउड टू प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट और इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट एज वेल, ठीक है। तो 24 सबसेक्शन 8 को उसमें हाईलाइट किया गया है। तो रेस्ट इसमें आप एक बार नज़र मार लीजिएगा। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो जो AG है वो उनका जो क्राइटेरिया है ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो यहाँ जो प्रोविज़न है उसके ऊपर में अप्लाई नहीं होंगी। तो यही इसमें 25A में बोला गया है। तो अभी माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 5 चैप्टर्स। गुड वर्क, गुड अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव डन इन 3 days, ठीक है। सो आई होप, I mean the concept of court, accused, arrestee, arrest provisions, you know, is all clear to you. Important judgment on with regard to the arrest, ठीक है। I have just provided you, but still अगर और भी 2-3-4 रहेंगे तो अभी हमारी जर्नी लंबी है। So I'll keep on, I mean, discussing it with you further, ठीक है। तो I hope now 55A health and safety, very good Priya, thank you so much. Disha Ravi case for interstate arrest by Delhi High Court, that's it's not Disha Ravi में तो बहुत रताड़ लगाई है, ठीक है, वो एक अलग केस है। लेकिन इंटरस्टेट के लिए ना, देयर इज आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द केस, आई विल गिव यू टुमारो फॉर श्योर, ठीक है, वो मैं आपको दे देता हूँ। वी विल डिस्कस आल्सो जो इंटरस्टेट प्रोविजंस उसमें हैं अरेस्ट का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एनीथिंग एल्स? Anyhow, thank you. We have concluded on time, so you will be having now 10-15 minutes to prepare yourself for the next lecture. Okay. Thank you so much for today. It's hopefully enough. All the very best.